तुषार जी आज यहाँ आए हैं। मुझे एक्चुअली पहले मालूम नहीं था, इनका अचानक फ़ोन आया कि आज इनके ऑडिशंस हैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स के, और उसकी बॉम्बे ऑडिशन है। तो ही कॉल्ड मी और मैं यहाँ आया। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर हेयर टू get selected in Bombay audition. And it's a wonderful pageant done from almost 3 years Yes, sir. This is our third season. by Tushar Dhariwal and Archana ji, and I'm with them from last almost 3 years. All the good wishes. Thank you. माय नेम इज़ प्रियंका मालवीय और तुषार जी ने ऑडिशन यहाँ पे रखा है, उससे मुझे चांस मिला है और भी जितनी भी वुमेन्स हैं उनको चांस मिला है कि वो मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करें। मैं फ़िलहाल तो एक्टिंग करती हूँ, सीरियल्स वगैरह में काम करती हूँ और मेरा एम है एक बहुत बड़ी एक्टर बनना। देन मैं मिसेस इंडिया भी बनना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे अभी तक जो आपने किया है उसके अंदर बताइए कितना संघर्ष है जो भी आपने प्रोजेक्ट में काम किया उसके अंदर? अभी तक तो मैंने सभी अच्छे मतलब कैरेक्टर किए हैं एंड आगे भी उम्मीद है कि मैं और अच्छे लीड कैरेक्टर करूं और लीड के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। I think my name is Simi, and this is my first audition, first beauty pageant audition. I saw the ad, and I think it gave me a lot of excitement to come here and try my luck. So I think it's a good experience till now. So Simi, are you working professional or? yes, I am working. So I work into the marketing department, and yeah. So basically, I've been working for the past 12 years. So did not get time to focus on all this. So now I thought I should spare some time to do this. So how did you get started by participating in that pageant? So what was the inspiration? So I always wanted to do that right from college. I couldn't do that at that time. So this, I thought this would, revisiting that and actually living the passion that I wanted to. So that's are you inclined towards the glamour industry, working in the film industry or? not full time because I've got 2 kids, so I want to focus on them as well. But yes, a little bit here and there to get the taste of it is fine. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है और आज ऑडिशन देके बहुत अच्छा लगा उनके साथ यहाँ बात करके, और मेरा यही सपना है उनका ये अच्छा चले और हम लोग मिसेस इंडिया यूनिवर्सल बनने के लिए यहाँ आए हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी। नंदिनी जी हाउसवाइफ हैं, क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और मॉडलिंग करती हूँ। अभी लास्ट 2019 की विनर हूँ, मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ मिसेस एलोर का, और आगे भी कुछ करना चाहती हूँ। Thanks to Tushar sir and Archana ma'am. Big platform in showcase my talent. बहुत कुछ सीखने के मिलेगा आगे जाके। जो जीतते मिस यूनिवर्स जीतते तो एक बड़ा फेम मिल जाएगा और अपनी पहचान बनेगी लोगों में और कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना। एक्चुअली मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LSA में, मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये पेजेंट में। Hi, myself, I'm Hapini Rathod, and I'm first of all, I would like to thank you, and I would like to even give a big congratulations for this kind of a platform they are giving to the all married women, and especially like the kind of women today's life they are facing, they are managing work and even professional and personal life. So this is more important for women to focus on their own life, also personal aspects. So. I'm very happy to even women can think about herself and participate kind of this pageant. They can participate and they can prove themselves. So that's the more important thing. What about you? Are you working professional or? Yeah, I am working with the shipping industry. I'm handling finance department in the shipping industry, and I'm there with the almost last 15 to 16 years with this industry. मेरा नाम रीटा जायसवाल है और बहुत सालों से जब मैं कॉलेज में थी तब से मेरी इच्छा थी कि मैं मॉडलिंग इस लाइन में जाऊं, लेकिन समहाउ दैट टाइम मेरे फादर ने अलाउ नहीं किया था, और फिर बाद में जब शादी वगैरह हो गई तो बच्चे हो गए, तो बच्चों के चक्कर में फिर नहीं हुआ। तो इस साल मेरा बेटा और बेटी दोनों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। बेटी का 12th हो गया, नाउ शी इज़ लाइक लीविंग। सो अब मैं जाके अपने लिए कुछ सोच सकती थी। तो फिर जब इनका तुषार सर का और अर्चना मैम का जब मैंने ये ऐड देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चांस लिया जाए, बिकॉज़ ये मेरी बहुत सालों की तमन्ना थी। तो फिर मैंने इस तरह से यहाँ अप्लाई किया, और ये इसीलिए बस ऑल्दो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बिग बॉस में जाऊँ, लेकिन चांस यहाँ मिला तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। अभी तो ऐसे तो मैं हाउसवाइफ थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, शेयर मार्केट ट्रेडर हूँ। Contestants आए हैं, we've been through so many auditions already,
but today seeing the, the girls who are here, their personalities, the confidence that they're showing, of course, they have the potential in them. Let's see how they do further. But what are the signs you see? I mean, among the women who are married and coming to auditions like this, what is the challenge they are facing right now? I mean, the lack of confidence. What is the challenge? It's not lack of confidence, but of course, it takes a lot to be on stage in front of people. They have a lot of support, I think, from the family, because this time we are having the finale in Mauritius. So leaving your family behind for 10 days and going, I think a lot of support comes from the family here. So what will you looking for the people who are judging on what criteria? We're judging the people overall. There's not one particular criteria. They will be judged on the entire 10 days. Apart from the finale, the 3 rounds that are there, the talent round, the question answer round. But yeah, overall their behavior, overall how they manage themselves and how they conduct themselves, I think that is going to play a major role. So the contestants are very, very confident, and I think if they're getting an opportunity to be with Mrs. India Universe, I think it's a big opportunity for them, and I think they should make the most of it. So they should come here, be ready to learn, and be ready to make the most of whatever opportunities they have. So it's great. And what we are going to help out the contestants who are here? So we're going to be helping them in styling, in their walking, in their question answer round. There is so much that one can learn when they come to a pageant. Winning is of course important, but वो तो सबसे ज़रूरी होता है. But I won 2 pageants back to back, and I know that एक बार pageant से निकलने के बाद a person is a very different person. So the confident personality, independence, freedom, everything becomes so much. So we will help them find themselves again. So we will help them become their best. ऐसा अब हर बार की तरह ये हमारा सेकंड ऑडिशन है इस बार सीज़न 3 का मिसेस इंडिया यूनिवर्स का, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिस्पांस था. इस साल हमें उससे ज़्यादा रिस्पांस मिला, इसलिए हमने मुंबई ऑडिशन दोबारा लिखे, और कंटेस्टेंट मुंबई के बहुत बढ़ चढ़ के इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इट्स गुड. तो हमें इस तरीके की कुछ ऐसी परेशानियाँ नहीं, बिकॉज इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो अच्छा ही एक्सपीरियंस चल रहा है अभी. तो क्या आगे चल के विजन है, जो कॉन्टेस्टेंट्स होंगे उनको किस तरह से आप ग्रूम करने वाले, किस तरह से एक अलग प्लेटफॉर्म देने वाले हैं? प्लेटफॉर्म इज़ लाइक हम लोगों के ग्रूमिंग सेशंस होते हैं. इंडियाज़ द बेस्ट ग्रूमर जैसे अलीसिया राउत, अंजलि राउत, सिद्धांत सूर्यवंशी, डॉक्टर राकेश कृपलानी, इस तरीके के मतलब नेशनली जो रिनाउंड ग्रूमर एंड ट्रेनर है, हम लोग उनके साथ इनको एक ग्रूमिंग सेशन प्लेटफॉर्म देते हैं. और जो विनर्स होते हैं वो हमारे इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स में जाते हैं, जैसे मिसेस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस अर्थ, मिसेस इंटरनेशनल. तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया यू लुक फॉर व्हेन जजिंग अ कंटेस्टेंट? क्या क्राइटेरिया होता है कि आप समझते हैं कि इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उनका कैलिबर देखते हैं. फिर कहीं ना कहीं आकर, क्योंकि मैरिड वुमेन्स हैं, सबको प्रॉपरली हम लोग नहीं देख सकते, एज अ जज नहीं कर सकते, एज अ मॉडल. हम लोग उनके अंदर उनकी क्वालिटी, हम लोग इस तरीके की कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जिनसे हम उनको बेस पे उनको सेलेक्ट करते हैं. थोड़ी सी चुनौतियाँ और थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं कि एक वुमेन अपने घर से एक स्टेप आउट बाहर निकलती है तो फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है. बट हाँ, वो लोग वुमेन ऑलवेज मैनेज एवरीथिंग, तो वो लोग मैनेज कर लेती हैं. और हमारा क्राइटेरिया सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, वो अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और वो आगे क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, उनके जो ड्रीम्स थे उनको कैसे पूरा करना चाहती हैं, बस वही है. और आगे जाके हम लोग उनको ग्रूम करते हैं पैजेंट में. तो पर्सनालिटी के साथ सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट क्या होता है? मतलब हाइट है, फेस है, कम्युनिकेशन है, व्हाट आर अदर थिंग्स यू लुक फॉर? No, this is for misses, so we don't take any height and weight criteria. But what is the confidence के अलावा और क्या आप देखती हैं कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी, और सबसे ज़्यादा देखते हैं वो कितनी पैशनेट है तो डू एनीथिंग. तो आगे चल के क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रही हैं खुद की तरफ से, या कोई ऐसा चीज़ जो आप बताना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? जो पार्टिसिपेंट है आफ्टर द पैजेंट दे रिप्रेजेंट देयर टाइटल्स इन international level, like Mrs. Universe, Mrs. World of the Universe, Mrs. Grand Universe, Women of the Universe, and after that we provide them some platforms like for web series and serials and photo shoots like that.